स्टार्ट करें। कोरोना महामारीनी हालनी परिस्थितिने ध्याने लेता कर्फ्यू उपरांत सरकारश्रीना निर्देशानुसार नवा प्रतिबंधात्मक हुक्मों बहार पाडवामां आव्या छे। तमाम नागरिकोने आ बाबते कोईपण प्रकारनी अस्पष्टता ना रहे, मगजमां गूंचवण ना रहे એટલા માટે જાહેરનામું સુરત શહેર માટે બહાર પાડવામાં આવ્યા છે। સ્વયં સ્પષ્ટ છે, ગઈકાલથી જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે। મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે મીડિયાના મિત્રો મારફતે આ માહિતી તમામ સુધી ઓલરેડી પહોંચી ગઈ છે। આવશ્યક સેવાઓ, મેડિકલ સર્વિસીસ, ખાણીપીણી, એની સાથે સાથે જેટલા ઉત્પાદક કારખાનાઓ છે એટલે ફેક્ટરીજ છે, આમાં ટેક્સટાઇલની ફેક્ટરી હોય કે હીરાના કારખાના હોય, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ્સ અને ફેક્ટરીઝ ચાલુ રાખવામાં આવશે। આવશ્યક સેવાઓ ચાલુ છે, સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સેવાઓ ચાલુ છે। જેમ મેં અગાઉ વાત કરી, જાહેરનામું આ બાબતે બહુ વિગતવાર બધી વિગતોના વર્ણન કરે છે। કેટલાક લોકો પ્રશ્ન કરે છે લારી ગલ્લા એટલે આવશ્યક સેવાઓમાં શાકભાજી આવી જાય છે, એટલા માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને કોરોના સંબંધિત તમામ તકેદારીઓ સાથે લારી ગલ્લા શાકભાજીના વેચાણ માટે ખુલ્લા રાખી શકાશે, એના ઉપર પ્રતિબંધ નથી। જેમ મેં અગાઉ પણ કીધું છે, વિગતવારની સૂચનાઓ છે। બધા નાગરિકોને અને મીડિયાના તમામ મિત્રોને પણ વિનંતી છે કે એની વિગતો તમામ નાગરિકો સુધી વહેલી તકે પહોંચી જાય। સમગ્ર સરકારી તંત્ર અને પોલીસ નાગરિકોને આ મહામારીથી બચાવવા માટે ઝઝૂમી રહ્યા છે। હંમેશાની જેમ મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે સુરત શહેરની પ્રજા આમાં તંત્રને અને પોલીસને સંપૂર્ણ સહયોગ પૂરા પાડશે। મીડિયાના મિત્રોને પણ ખાસ વિનંતી છે કે આ બાબતે જાહેરનામાની જે સંપૂર્ણ વિગતો છે, કઈ કઈ સેવાઓ ચાલુ છે અને કઈ કઈ સેવાઓ કઈ કઈ બાબતો ઉપર પ્રતિબંધ છે, આ જાહેરનામાની વિગતો બધા સુધી આપના મારફતે પહોંચે તો આપણે બધા સંકલનમાં ભેગા રહીને આ મહામારીને નિયંત્રિત કરવામાં સફળ રહેશું। ધન્યવાદ। આ બાબતે ગઈકાલથી અમે ટેક્સટાઇલ માર્કેટના જેટલા એસોસિએશન એની સાથે સંપર્કમાં હતા। એનાની કેસ કોઈના કારણ વગર તકલીફ ના પડે એટલી તકેદારી પોલીસ દ્વારા રાખવામાં આવી રહી છે, પરંતુ મીડિયા મારફતે અમારા તરફથી પણ આ જાહેરનામાની બહોળી પ્રસિદ્ધિ ગઈકાલથી કરી દેવામાં આવી છે। ગઈકાલે રાતે આ જાહેરનામાનું બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું। વાત કરે છે ટેક્સટાઇલ માર્કેટવાળા, ગઈકાલે જો સવારે આ જાણ કરવામાં આવી હતી સરકાર દ્વારા અથવા પોલીસ કમિશનર દ્વારા કે આવતીકાલથી મિની લોકડાઉન લાગશે, તો કર્મચારીઓને જો ટેક્સટાઇલ માર્કેટ અને એના તમામ લોકોની સાથે પોલીસ સતત સંકલનમાં છે, સહકાર સાથે કામ ચાલી રહ્યું છે। ડાયમંડ માર્કેટની શું સ્થિતિ છે? કારણ કે ત્યાં આગળ ઘણા બધા કારખાનાઓ અને બધું 50%ના એસઓપી ચાલી રહ્યું છે, તો એ મુદ્દાનું શું થાય? કારખાનાઓ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ્સ છે, જે પ્રોડક્શન પ્લાન્ટ છે, એના ઉપર પ્રતિબંધ નથી। કારખાનાઓ ચાલુ રાખી શકાશે। આ સ્પષ્ટ છે કે આ તમામ કોરોનાના જેટલા પ્રિકોશન્સ છે, જે પ્રોટોકોલ છે, એની પાલના કરતા આ કારખાનાઓ ચાલુ રાખી શકાય એમ છે। ઓફિસો બાબતે હું વધારે પડતી સ્પષ્ટતા કરું,
કોઈ પણ ઓફિસો સરકારી અર્ધ સરકારી ઇવન ખાનગી ઓફિસો ઓફિસ 50% કર્મચારીઓ સાથે ચાલુ રાખી શકાશે, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારની દુકાન, શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ, કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ આ બધા બંધ રાખવામાં આવશે. થેન્ક યુ. સર કેટલા કિસ્સાઓની અંદર બ્લડ લેવા જતા લોકોની સામે પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે અને આક્ષેપ પણ થયો છે, એ સંદર્ભમાં શું કહેવું? ये तो एंडलेस चर्चा है, जाहिरनामा है, एकदम क्लियर है, इसको पालन का आपको भी पता है, मुझे भी पता है. तो ब्लड लेने जा रहा था, उसको रुका गया है. मैं इस चीज़ की मैंने इंक्वायरी करने के लिए बोल दिया है. पुलिस को प्लीज़ काम करने दीजिए. पुलिस काम करती है, पुलिस काम कर रही है. सर, पुलिस ने वडोदरा इलाके में एक डॉग को लेकर मैं अभी सिर्फ जाहिरनामा की चर्चा कर रहा हूँ. दिस नॉट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर अदर क्वेश्चंस. तो मीडिया बाद में क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना। बाद में अभी हिंदी के लिए वो बोल रहे हैं. बच्चे को उसके डॉग के साथ पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। किसको? एक बच्चा जो है अपने डॉग को शौच कर क्रिया करवाने निकला था और पुलिस उसके डॉग को साथ में लेके कितने बजे? बजे तो 8-9 बजे, घर से 50 मीटर दूर पे था। कर्फ्यू का मतलब है कि आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगे. यदि किसी अतिरेक किया है तो मैं उसको चेक करा लूंगा. नहीं सर, कुत्ते को भी ले जानवर को भी ले जाना चाहिए थाने पे. सवाल ये है कि एक जानवर जो जिसको पता ही नहीं है क्या कर्फ्यू में, उसको भी थाने में ले जाके बांध दिया जाए. यदि उस लड़के को ले जा रही है पुलिस, तो क्या उसके कुत्ते को आवरू छोड़ देगी रोड पे? सर घर से बाहर ही था. मैं चेक करा लूंगा क्या प्रॉब्लम होगा. सर पुलिस के लिए जिस प्रकार से हेल्थ को लेकर जानकारी मुझे पुलिस को जो सारवार है वो दी जाएगी, लेकिन कल ऐसा वाकया सामने आया कि स्मीमेर अस्पताल के बाहर एक टीआरबी जवान 108 में पड़ा रहा, उसको जगह नहीं मिली. किस तरह से हो पाएगा पुलिस की सुरक्षा? पुलिस की टीआरबी की एसआरपी की सुरक्षा के लिए आज की परिस्थिति को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं. कोई व्यक्तिगत कोई बनाव कहीं हो सकता है, उसका भी हम ध्यान रखेंगे, ऐसा कहीं ना हो. सर एक सवाल ये है कि पुलिस एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर ले. ओके सर. कोरोना की हाल की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए रात को 8 से सुबह 6 बजे तक का जो कर्फ्यू है, उसके उपरांत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश किए गए हैं और उसके बारे में सूरत शहर के लिए भी एक नोटिफिकेशन यानी जाहिरनामा प्रकाशित किया गया है. उसके अनुसार आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और इनसे संबंधित जो सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, लेकिन इनके अलावा कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, दुकानें, वो सभी बंद रहेंगे. जो लारी गल्ला पे शाक भाजी का वितरण हो रहा है वो चालू रख सकते हैं, लेकिन होटल रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे के लिए खुले रहेंगे. वहाँ बैठ के कोई आदमी खाना नहीं खा सकता. इन सभी मुद्दों के बारे में विगतवार पूरी स्पष्टीकरण के साथ नोटिफिकेशन में ये वर्णन दिया गया है. मैं सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस महामारी से बचने के लिए सरकारी तंत्र और पुलिस जो मेहनत कर रही है उसमें इस जाहिरनामा की सूचनाओं के अनुसार आप भी सहकार करें, तभी इससे बचने में हम सभी लोग सफल होंगे. थैंक यू. हाँ जी. मेरा ये सवाल था कि लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी होती है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सैकड़ों पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं कोरोना से, कुछ डेथ भी हुई है. तो क्या पुलिस की लापरवाही जो हो जाती है, पुलिस थानों में अक्सर देखते हैं कि वो बिना मास्क बैठे रहते हैं, तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से? क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ देखने नहीं मिला. पुलिस को इस कोरोना के काल में फील्ड में काम करना पड़ता है. पुलिस एक आवश्यक सेवा है. आवश्यक सेवाओं की तरह पुलिस को भी अपना काम करना है. पुलिस के सभी
जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए मास्क भी दिए गए हैं, सैनिटाइज़र दिए गए हैं, पुलिस स्टेशंस को और पुलिस के सभी ऑफिसेज को सैनिटाइज कराने का काम भी चल रहा है। हमारे यहाँ सीपी ऑफिस में से एक कोविड सेल शुरू किया गया है जिसमें पुलिस, एसआरपी, होमगार्ड, टीआरबी, कोई भी यदि पॉजिटिव आता है तो उसकी लगातार ठीक से उसको सुविधा मिले, इसकी चिंता की जाती है। इसके लिए ज़रूरी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। व्यक्तिगत यदि कोई केस है, यदि मेरे ध्यान पे आएगा तो उस पर भी हम पूरा ध्यान देंगे। जैसे आपने कहा सेल बनाया गया है, तो 108 का कर्मी था जो सिविल हॉस्पिटल में उसको एडमिशन ही नहीं दिया जा रहा था। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक वो सिविल हॉस्पिटल के बाहर था। मैंने खुद देखा। उसके बाद क्या हुआ है? घंटे के बाद 1 घंटा 10 मिनट तक वो बाहर ही खड़ा था सिविल हॉस्पिटल के। मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन 232 पुलिस और बाकी फोर्सेस के लोग जो पॉजिटिव हैं उन सभी की डेली पूछा हम कर रहे हैं हमारे सेल के मार्फत। 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं ये भी हमें ध्यान है। इस तरह का प्रश्न आप कर रहे हैं, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन जब पूरा समाज इतनी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत भारी स्ट्रेस है, किसी व्यक्तिगत केस में आप जो बता रहे हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि पुलिस के किसी भी कर्मचारी को या किसी दूसरे कर्मचारी को इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। रिफ्रेशमेंट बांध पुलिस की चालू की गई, वो क्या जानकारी मुझे जरा बता दीजिए। जैसा मैंने बताया, पुलिस आवश्यक सेवा है और कोरोना के इस काल में जब सभी लोगों को घर बैठने के लिए कहा जा रहा है, पुलिस का काम ये है कि वो फील्ड में रह के काम करती है। उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। वो खाना खा के घर से निकलते हैं और उसके बाद लंबे टाइम तक वो ड्यूटी करते हैं। धूप में खड़ा रहना पड़ता है, काफ़ी लोगों के संपर्क में भी आते हैं। तो ऐसे में यदि भूखा पेट रहेगा तो उसमें संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, रिफ्रेशमेंट ऑन व्हील्स। हमारी 2 गाड़ियां हैं, वो अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग पॉइंट पे जाती हैं और पुलिस के कर्मचारी जितने लंबे टाइम से ड्यूटी पे होते हैं उनको रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराने का एक प्रयास किया गया है। ये पिछले 3 दिन से ये कार्य चल रहा है। धीरे धीरे इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस तरह का प्रयास किया जाएगा। सचिन जीआईडीसी पुलिस के सामने परिवार ने गंभीर आरोप लगाया है कि वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए डोनर को लेके जा रहे थे, उनका प्रिस्क्रिप्शन भी फाड़ दिया गया था रास्ते के अंदर। इसके लिए आपकी तपास आगे बढ़ी है, कसूरवार था तपास समिति। डीसीपी जोन 3 को मैंने इंक्वायरी करने के लिए कहा है। जो भी पता लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे ही कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। मैं आप लोगों के बारे में भी चिंतित हूँ। आप लोगों का भी एक्सपोजर इतना ही है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाकी ये तो नहीं कह सकते हैं कि कोई भी संक्रमित नहीं होगा, कोई भी हो सकता है मेरे तक।